Hello everyone. I hope you all are fine and doing your work regularly. So today we will start a chapter number 4 of geography climate. Basically, this chapter is conceptual based chapter. So as we discuss already about our first 3 chapters of geography. First chapter is India and its location and size. Second is relief features of India. Third one is a drainage of India. So this chapter based on the subject. Chapters. So be careful when you learn this chapter. So climate. So first of all, question arises, what is climate? So in the simple language, we can say that our weather conditions and variation over a large area for a long period of time is called a climate. क्लाइमेट मीन्स एक बहुत बड़े साइज के ऊपर या एरिया के अंदर जो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी वेदर कंडीशंस होती हैं उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. अंडरस्टैंड. बेसिकली फॉर क्लाइमेट हम कितने टाइम रखते हैं? 30 ईयर्स. किसी एरिया की अगर क्लाइमेट को डिटरमाइन करना है तो उसके 30 ईयर्स के डाटा को हम रिसीव करते हैं और उसके ऊपर एनालाइज करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट अ वेदर atmospheric conditions for a short period of time or short area or a smaller area. So like that कि हमने एक विलेज का डाटा ले लिया, उसके ऊपर हम वेदर कंडीशन देखते हैं कि कभी बादल हो जाते हैं, कभी हवाएं चलने लग जाती हैं. इस तरह से हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अब वेदर है कभी भी चेंज होता है. आप देखो शायद शाइनी है बट हो सकता है थोड़ी देर बाद बादल आ जाए और रेनफॉल स्टार्ट हो जाए. ओके, अंडरस्टैंड. सो दी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट. नेक्स्ट इज इफ वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ climate and weather, both elements are same. So here is elements of weather and climate. First one is temperature, pressure, air pressure, winds and humidity, and last one is precipitation, means आपकी जो rainfall है. Okay, understand? So now factors that control the climate. First one is latitude, altitude, pressure, wind system, distance from sea, and relief. So basically these are a control the climate of any region. But so factors that affecting or affects the climate of India. First one is latitude. So as we know that India located between 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. It means that India experience the two type of climate. So here with the help of example, this is rough diagram. So Tropic of Cancer passes from Indian states or divide the India into two parts. And lower part of India experience a tropical type of climate, and upper part or northern part of India experience a subtropical type of climate. Understand? And next topic is next factor is altitude. So as we know that you discuss in chapter number 2 relief features. So altitude means height. So in the Himalayan region
where average height is near about 600 6100 meter above sea level. It's mean that we already discussed in previous classes, when we go upward from mean sea level, our temperature decrease with the ratio of 6.5 degrees Celsius per किलोमीटर. मीन्स जब हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो जो आपका टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है. कितने पे होता है, कितना होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट. अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट इज प्रेशर कंडीशन. प्रेशर, so we will discuss later. So first of all, now we will discuss our distance from sea. So we know that a lower part or southern part of India experience the marine type of climate. मीन्स उसके साथ सी लगते हैं, इसलिए वहाँ पे यहाँ टेम्परेचर ना ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा लो होता है. अंडरस्टैंड? बट ऑन द अदर हैंड ना नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया experience a continental type of climate. It's mean that our interior part of India experience a very extensive type of climate. गर्मियों के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है और सर्दियों के अंदर सर्दी ज़्यादा होती है. अंडरस्टैंड? And next is our very important topic, Indian monsoon. So Indian monsoon. So basically a word monsoon comes from Arabic word mausim. Mausim means सीजन. मीन्स एक पर्टिकुलर किसी सीजन के लिए हम मानसून को यूज करते हैं. फॉर बिफोर वी डिस्कस अबाउट अ मानसून, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट अ प्रेशर कंडीशंस और टेम्परेचर कंडीशंस. व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन अ टेम्परेचर एंड air pressure. And then after we will discuss about wind system to knowing about the Indian monsoon. So it is called mechanism of Indian monsoon. Okay, for understanding of air pressure, so it is common that where a temperature is high, and then air pressure will be low. And other hand, if temperature is low, then air pressure will be high. Understand? Okay. And then if we talk about the winds, basically winds blowing from high pressure to low pressure. Winds blowing from high pressure to low air pressure. Understand? जो विंड्स हैं आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करेंगी या चलेंगी. सो नाउ we will discuss about Indian monsoon, but one topic is left. So basically in the previous chapters, or maybe in previous class, or maybe in 7th class, you discuss about some permanent winds. Here is equator, subtropical high pressure belt means, and subtropical high pressure belts. So winds blowing from this direction, from south east
साउथ ईस्ट है ना, ओके, साउथ ईस्ट. When these winds cross the equator, here take example, when suppose that these wind blowing like that, अब ये इस डायरेक्शन में विंड चल रही है. When these winds cross the equator, then a Coriolis force, law of Farrell's, then imposed on them. जो फेरल्स का लॉ है वो यहाँ पे इम्पोज कर जाता है. जब ये विंड्स इक्वेटर को पार करती हैं या नदर्न हेमिस्फीयर में आती हैं तो इनसे फेरल का लॉ लगता है. देन दे टर्न्स देयर डायरेक्शन टूवर्ड्स देयर राइट साइड. मीन्स ऐसे विंड्स चली, इक्वेटर को क्रॉस किया, देन किधर को टर्न कर गई, इधर को टर्न कर गई. अब इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ वेस्ट विंड्स, साउथ वेस्ट विंड्स. ओके, अंडरस्टैंड. अब पता लगा भाई यहाँ पे जो विंड्स चल रही थी, जो ट्रेड विंड्स बोलते हैं जिनको, जब इन्होंने इक्वेटर को क्रॉस किया देन दे डिफ्लेक्ट और टर्न्स टूवर्ड्स देयर राइट साइड. दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड अ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. मीन्स किधर से आ रही हैं, साउथ और वेस्ट से. सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट अ मानसून. ओके, so for monsoon, so we know that a monsoon comes from southwest monsoon winds. So the conditions for के winds हैं जो इंडिया की तरफ ही क्यों मूव करेंगी. तो अब यहाँ पे इंडिया का जो एयर प्रेशर है या आसपास का जो एयर प्रेशर है वो डिस्कस करने वाला है मेन. ओके, अब वी नो दैट इन द मंथ ऑफ मई और जून और मई के मंथ में हमको पता है वी एक्सपीरियंस अ वेरी एक्सटेंसिव टाइप ऑफ हीट. यहाँ पे अब क्या क्या होगा, टेम्परेचर वेरी हाई, टेम्परेचर इज वेरी हाई. जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा. यहाँ पे लो प्रेशर हो गया क्योंकि टेम्परेचर हाई है. ऑन द अदर हैंड इन द ओशन रीजन और बे ऑफ बंगाल रीजन और वी कैन से दैट एन अरेबियन रीजन, यहाँ पे टेम्परेचर लैंड के मुकाबले क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा. और लो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, एयर प्रेशर विल बी हाई. So now as we know that winds blowing from high pressure to low pressure means हाई प्रेशर इधर है और लो प्रेशर इधर है, तो विंड्स ने क्या किया, इधर से इधर को मूव करना स्टार्ट कर दिया. बट एंड वन इम्पॉर्टेंट ITCZ मीन्स इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स. अब ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस क्या है, ये बेसिकली आपका इक्वेटर के ऊपर होना चाहिए. बट हीट की वजह से क्या होता है, या हमको पता है कि गर्मियों के ऊपर जो सन की जो रेज हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली फॉल करती हैं. तो इसकी वजह से जो ITCZ है वो नॉर्थ की साइड खिसक जाता है. मीन्स यहाँ पे होना चाहिए बट वो यहाँ पे आ जाता है. ओके, सो नाउ स्टार्ट द टॉपिक ऑफ मानसून. अब जो विंड्स हैं, ओके, अब 1 जून, यहाँ पे 1 जून को केरला कोस्ट के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, जिसको हम बोलते हैं बस्ट ऑफ मानसून. ओके, बस्ट ऑफ मानसून. सो 1 जून को यहाँ पे स्ट्राइक किया. देन ऑन 10 जून को ये कहाँ पे स्ट्राइक करेंगी, विद महाराष्ट्र कोस्ट. तो महाराष्ट्र कोस्ट पे ये स्ट्राइक करेंगी. देन दीज विंड्स स्ट्राइक हियर.
सो यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी। एज वी नो दैट हियर इज अ वेस्टर्न घाट्स से टकराएंगी और कुछ विंड्स हैं जो इन पासेस के थ्रू इस पार्ट के अंदर इंटर कर जाएंगी। बट हियर इज मेन फंक्शंस। यहाँ पे जब स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, सपोज दैट यस रिलीफ फीचर्स, और यहाँ से ये विंड्स हैं जब स्ट्राइक करेंगी सो ऊपर की तरफ उड़ जाएंगी। यहाँ से स्ट्राइक करके ऊपर की तरफ, क्योंकि इनसे टकराएंगी और ऊपर की तरफ जाएंगी, और यहाँ पे क्या करेंगी, यहाँ पे कंडेंसेशन करके क्लाउड फॉर्मेशन होगी। देन यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल होगी, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल। ओके, अंडरस्टैंड। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्या है, एज वी नो दैट दीज आर वार्म विंड्स, सो दैट्स वाई इस वाले रीजन की जो जितना भी मॉइस्चर होगा उसको अब्जॉर्ब कर लेंगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे तो रेनफॉल आपके बहुत ज़्यादा होती है इन द वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। बट ईस्टर्न साइड क्या है, यहाँ पे आपको जो डेजर्ट रीजन है वो देखने को मिलता है इन द पार्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना। सो नाउ अब विंड्स स्ट्राइक हेयर, और इसके साथ स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल करने के बाद ये वेस्टर्न घाट से टकरा के इधर की तरफ चल जाती हैं। जब यहाँ पे ये विंड्स पहुँचती हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है, नाउन एज सौराष्ट्र ब्रांच। देन अगेन टर्न्स देयर डायरेक्शन एंड मूव्स टूवर्ड्स northern side and take a moisture from a run of Kutch. ओके, रन ऑफ कच्छ से लेके यहाँ पे वी नो दैट नियर द उदयपुर के क्या है, माउंट आबू मीन्स हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। सो यहाँ पे उदयपुर के पास काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होने के बाद देन वंस अगेन मूव्स टूवर्ड्स नॉर्दर्न साइड। देन as we know that these are warm currents, that's why it's absorb the moisture from a Thar region or a desert region and then comes here. Okay, this is a branch of Arabian Sea branch. But on the other hand, if we talk about a Bay of Bengal, there is a very important branch. Once again, winds blowing from here, then strike with, there are three hills, गारो खासी जयंतिया मीन्स तीनों साइड से इस विंड्स को आपस में घेर लिए। मीन्स चले तो गई विंड्स बट अब उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक प्लेस है, कौन सा, मेघालय के अंदर चेरापूंजी या मवस्त्रम रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड नियर अबाउट 1000 सेंटीमीटर एनुअली। ओके, देन यहाँ से कुछ विंड्स निकल के अरुणाचल प्रदेश की तरफ चले जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश, हियर वी नो दैट हियर इज मानसून, हियर इज हिमालय से टकरा के देन टर्न्स टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड। सो हियर इज असम हिल्स से टकराने के बाद असम में रेनफॉल करती हैं। एज वी नो दैट इन द एवरी ईयर तो क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल होती है ना। then moves towards eastern side from the states of West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, पंजाब, हरियाणा। then here यहाँ पे जब दोनों ये विंड्स आके मिलती हैं इस वाले रीजन के अंदर जब दोनों मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, उत्तराखंड एंड हिमाचल रीजन। सो वहाँ पे क्या होता है, क्लाउड बस्ट होता है मीन्स बादल फटते हैं। ओके, अंडरस्टैंड दिस अ बेसिक कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे बादल फटने की घटना होती है। बट धीरे धीरे अब कौन सा मंथ आ गया, आपका मंथ आ गया सितंबर एंड अक्टूबर के अंदर क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे हमारा जो क्या बोलते हैं ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है आपका, अब हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जब यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, आप सपोज करो यहाँ पे हाई एयर प्रेशर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, लो एयर प्रेशर हो गया।
देन विंड्स ने दोबारा इसी डायरेक्शन में वापस आती हैं। सो एज वी नो दैट यहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे विंड्स स्ट्राइक नहीं कर रही, बट जब ये विंड्स वापस आ जाएंगी ड्यूरिंग द रिटर्निंग और रिट्रीटिंग मानसून, सो रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, जब ये विंड्स वापस आएंगी तो क्या है, इस वाले कोस्ट के साथ टकराएंगी, वापस इसी डायरेक्शन आ रही हैं, सो इस वाले तमिलनाडु वाले कोस्ट से टकराएंगी। सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस चैप्टर कावेरी वाई इज अ पेरेनियल रिवर। यस, अंडरस्टैंड। जब ये विंड्स इधर से आएंगी तो क्या करेंगी, कावेरी रिवर में पानी रिसीव होगा, एंड इधर से जब जाएंगी तो भी कावेरी रिवर में पानी आएगा, है ना। दैट्स वाई अ कावेरी रिवर से पेरेनियल रिवर्स। सो यहाँ से विंड्स जब वापस आएंगी तो इस रीजन में रेनफॉल नहीं होगी क्योंकि ये ड्राई विंड्स हैं, बट जब यहाँ से ये इधर से निकल के आएंगी तो बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर है उसको ऑब्जॉर्व कर लेंगी। देन मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करने के बाद एज वी नो दैट हियर इज ईस्टर्न घाट्स के आसपास या ईस्टर्न घाट्स के वेस्ट ईस्ट साइड ये रेनफॉल करेंगी। ओके, अंडरस्टैंड। So it is a topic of your monsoon. So next time we discuss about the two other seasons of India, a winter season and a summer season. Okay, understand. If you have any query related to this topic, you can ask at my personal window or you can ask through your class in charges. Okay, I hope you understand. Thank you.